MS Excel. In yesterday's class, we had learned what is the introduction of MS Excel, what are the uses of MS Excel, how you are going to open MS Excel in the Windows, what are the components of MS Excel, some of the features like how to insert the tables, what are the rulers, what are the title bar, what are the menu bar, and also we have learned some of the cursor keys and some of the advanced features like how to sort the data, how to filter the data, and how to find and select replace the data. In the Excel sheets in the yesterday we have done practically how to sort the data from the data entries. We have done it. Data entries, it should be like if you have a large amount of data you have, and if you want to find out particular person or a particular data, so you can use the find option, find and replace option. Okay. And if you want to sort the data according to your requirement, then you have to go to the home menu and then click on the sorting. So moving towards the another topic, that is today you are going to learn about some of the functions, basics level of functions or formulas in the Excel. So let's start. Go to the Excel, and this is the blank sheet you have. This is the proper MS Excel window. Okay, there are some of the functions here. So today you are going to learn about the functions. So first function is like average. If you want to find out average of some numbers, so what you have to do is, this is the first average. I am writing the formula name I am going to teach you, and here I am going to do some of the entries practically. Okay, so if you want, so there are some of the numbers sitting here like 34, 45, 65, 76, 89. I am taking some random numbers here. 56. Okay, I want to find out the average of these numbers. So what you have to do is, while using a function, you have to write equals to sign here. So what you have to do is write equals to average. जैसे ही आपने average लिखा, you have write average here. Then you will find that there are the different types of average are inbuilt in the MS Excel. ये जो पहले से ही average के functions यहाँ पे inbuilt दे दिए हैं, और यहाँ पे जैसे ही मैं parenthesis लगाऊंगी तो उसका syntax आ जाएगा कि average का syntax क्या है, मतलब आप कैसे average के syntax को यहाँ पे लिख सकते हो. तो यहाँ पे syntax आ रहा है average parenthesis number 1, number 2, number 3. ये तो तब है जब आपके पास नंबरिंग का डेटा कम है. फॉर एग्जांपल 2 या 3 नंबर्स की एंट्री है आपके पास, तब आप इस चीज़ को लगा सकते हो. लेकिन जब आपके पास 100 या 100 से ज़्यादा, 50 या 50 से ज़्यादा नंबर्स होते हैं, तब आप क्या करते हो, आप अपनी पूरी सेल रेंज को सेलेक्ट करते हो. ठीक है, तो सेल रेंज आपकी इस समय कौन सी है, ये है. जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे, आपने देखा कि आपकी सेल रेंज हाईलाइट हो गई है, और बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आपके नेम बॉक्स, आपका सेल का नेम लिखा हुआ आ गया है C2 से लेकर C7 तक. तो C2 कोलन C7, ये कोलन इंडिकेट करता है कि सेल रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक है. ठीक है, तो C2 कोलन C7, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाया और आपने एंटर किया. आपका यहाँ से एवरेज निकल के आ गया है ना, ये आपका एवरेज है 60.5. अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपके पास कम डेटा है तो आप यहाँ पे एवरेज लिखोगे. डायरेक्टली यू कैन राइट द डेटा एंट्रीज लाइक 34, 65, 76, 87, 56. ओके, और ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया 60.5. ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली डेटा एंट्रीज को लिखने का फॉर्मूला तब आप यूज कर सकते हो जब आपके पास डेटा
कम है। और जब आपके पास डेटा एंट्रीज बहुत ज़्यादा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हो जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मूला, एवरेज पेरेंथेसिस सेलेक्ट द सेल रेंज एंड देन क्लोज द पेरेंथेसिस। तो आपके पास ये एवरेज आ गया। ठीक है, अब करते हैं सेकंड फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, दैट इज सम। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स। अंडरस्टैंड? यहाँ पे मैं एवरेज लिख देती हूँ। ओके, नाउ सम के लिए, अब सम के लिए हम इक्वल्स टू साइन लगाते हैं क्योंकि हमें हमारे इस कॉलम के डेटा के सम निकालना है, तो हम इसलिए सम इसके नीचे लगा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे कोई डेटा लिखा हुआ होता तो मैं वो यूज करती। अभी तो हम सम यूज कर रहे हैं। अब आप लिखोगे इक्वल्स टू सम पेरेंथेसिस। जैसे ही आपने सम लिखा तभी इसका सिंटैक्स यहाँ पर आ गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। You can simply write the data and directly. Otherwise, you can simply select the range. Understand? और आपने इसको equals to कर दिया। ठीक है, तो ये आपका सम निकल कर आ गया 363। आप ऐसे भी कर सकते हो, equals to C2 plus C3 plus C4 plus C5 plus C6 plus C7। तो आपने देखा, आप डायरेक्टली यहाँ पर सीधे जो आपका सेल का नेम है उसको भी आप राइट कर सकते हो, लेकिन उसके आगे आपको एक ऑपरेटर्स लगाने पड़ेंगे। ऑपरेटर्स तो सबको पता है ना, ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, स्लैश, ऑल दीज आर कंसीडर्ड एज अ ऑपरेटर्स। तो उनको यूज करना पड़ता है आपको जब आप डायरेक्टली सेल के नेम को लिख रहे हो। ठीक है, अब आपने एंटर कराया और 363, इस तरीके से भी आपका आ गया आंसर। और तीसरा तरीका ये है, इक्वल्स टू का यूज करके आप सम लिख के सीधे C4, C2, कॉमा selecting the cells or directly writing the cells। So there are the three ways to write the formulas of sum। सबसे पहला सम क्या है कि आपने सीधे सम लिखकर इक्वल्स टू सम, प्रॉपरली सम जो वर्ड है उसको लिखकर पैरेंथेसिस लगाकर सेल्स को सेलेक्ट किया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आपने डायरेक्टली सेल को प्लस ऑपरेटर्स के साथ लिखकर उसका सम निकाल लिया, जैसे आप मैथमेटिकल फॉर्मूला में करते हो। ठीक है, और थर्ड तरीका आपका क्या है, आपने इक्वल्स टू सम लिखा लेकिन उसके आगे आपने सेल रेंज ना देके डायरेक्टली सेल नेम को कॉमा लगा कर दिया। तो ये तीन तरीके हैं सम निकालने के। ये मैं प्लस का साइन बना देती हूँ क्योंकि ये सम है पूरा। ठीक है, ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म, दैट इज सम इफ। सम इफ मतलब सम के साथ एक कंडीशन आपकी लगेगी। ठीक है, अब इसके लिए हम कोई और अदर डेटा लेंगे, सम इफ। सो इसके लिए हम एक डेटा ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार टाइप, नेक्स्ट नंबर, किसी भी कार का नंबर। यहाँ पे मैं रेंडमली आपकी डेटा को एंटर करा रही हूँ। ठीक है, कार टाइप हम लेंगे कोई सी भी, लाइक होंडा, सुजुकी, सॉरी ज़्यादा बाइक्स हैं, Hyundai, Swift Desire, Benz. Randomly I am taking the numbers and here you can randomly write the numbers.
ये रैंडमली आपने चार से ज़्यादा और ले लेते हैं, हम एक दो और ले लेते हैं। लेट्स टेक लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज ये देखिए मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा हम सेंटर में लेकर आते हैं, इससे पता लग जाएगा ये हेडिंग्स है, ठीक है। लैम्बोर्गिनी इसका हम रैंडमली कोई नंबर दे देंगे। रैंडमली आई एम गिविंग द कार्स नंबर्स, सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यही नंबर देने हैं। जस्ट आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स फॉर प्रैक्टिकल वर्क। ओके, so we have taken how many? Let's see the status. These are the 10. So there are the 10 cars I have typed here and with their numbers. So whenever you want to find out the sum according to any condition, जब आप किसी कंडीशन के साथ अपने सम को निकालना चाहते हो या देखना चाहते हो कि इनका क्या सम रहा, तो वहाँ पे आप सम इफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सम इफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। उससे पहले हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने पैरेंथेसिस स्टार्ट करा, इसका प्रॉपर सिंटेक्स आ गया। सिंटेक्स क्या आ गया? सिंटेक्स ये आया कि यहाँ पर जो है रेंज देनी है, उसके बाद क्राइटेरिया देना है। किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग? क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सम निकालना है, और उसके बाद जिसका सम निकालना है उसकी रेंज देनी है। अंडरस्टैंड? सो सबसे पहले हमने रेंज को सेलेक्ट किया, दैट मीन्स ये होंडा की रेंज, ये पूरे हमने कार टाइप को सेलेक्ट कर दिया। जैसे आपने सेलेक्ट करा, इसका प्रॉपर सेल रेंज आ गई E2:E11, मतलब E2 से लेकर E11। आप देख रहे हो ना जो भी सेल नेम है। उसके बाद क्राइटेरिया लगाया मैंने। क्या क्राइटेरिया? तो वो क्राइटेरिया मैं यहाँ पर लिखती हूँ। जैसे सॉरी अभी लगा, एक सेकेंड, यहाँ पर हम क्राइटेरिया लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्राइटेरिया लिख लेते हैं कि किस कार के अकॉर्डिंग हमें सम निकालना है। कार टाइप एंड सो यस वी आर डूइंग द फंक्शन सम इफ। सो व्हाट वी हैव टू डू इज राइट इक्वल्स टू सम EF if parenthesis start, select the range and then write the criteria। किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको अपना सम निकालना है। तो हमारा क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। E5, जो भी E5 में लिखा है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सम निकल कर आ जाएगा। लेकिन सम कहाँ से निकालना है वो रेंज में हमें देंगे, क्योंकि वैल्यूज तो हमारी यही है, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और पैरेंथेसिस क्लोज 1 2 4 5 6, ठीक है। अब जितने भी होंडा लिखे होंगे यहाँ पर उनका कैलकुलेशन निकाल के दे दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस है ना, तो हम एक बार इनका कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1 1 0 0 प्लस 5 6 7 8 5 6 7 8 प्लस एंड दूसरा क्या है, वो भी 5 6 7 8 ही है। 5 6 7 8 प्लस 1 2 2 1। I am not understanding why in the case of Swift it is giving the 0 result. We will find out it later. Okay. So have you learned? Sum if is the formula where you want to find out the sum with any condition or the criteria. जब भी आपका कोई क्राइटेरिया है या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन निकालनी हो, सम निकालना हो, तब आप सम इफ का यूज करते हो और उसका फॉर्मूला आपके सामने है। यहाँ पे आप लिख दो, जैसे टाटा लिख दो, ठीक है। तो मेरा क्राइटेरिया तो ये हो गया जो E15 वाले कॉलम सेल में लिखा है, ठीक है। और मेरा फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बार वो बार है जहाँ पे वैल्यू के पीछे कोई भी
फॉर्मूला लगा हुआ है या कोई भी आपका कंटेंट लिखा है वो वहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ तो वैल्यू शो हो रही है, पर इसके पीछे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो फॉर्मूला बार यही एक एडवांटेज है हमारा फॉर्मूला बार का। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शन, सो दैट इज काउंट। अब आपको कुछ काउंट करना है तो उसके लिए आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट डूइंग द काउंट। काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, select the range and then bracket close है। उसने अपने आप 10 शो कर दिया। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप नेम बॉक्स में भी देख सकते हो कि 10 वैल्यूज लिखी हैं, तो वो ये काउंट करेगा कि आपकी कितनी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हैं। 10 टोटल वैल्यूज लिखी हैं। इसी के साथ एक फंक्शन होता है, काउंट का फंक्शन है, हम यहाँ पे लिख देते हैं काउंट का फंक्शन है, ठीक है। काउंट का फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है, ये कार टाइप का फॉर्मूला है, उसका हम सम इफ कर रहे हैं। इसका मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में बदल दे रही हूँ। चलिए लेट्स मूव स्टार्ट सी नेक्स्ट फंक्शन दैट इज काउंट। काउंट इफ भी एक तरीके से कंडीशनल फंक्शन है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो किसी भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कि आपको किस चीज़ को काउंट करना है। अब इसके लिए हमें क्राइटेरिया की ज़रूरत है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कार टाइप लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे काउंट इफ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा और एग्जाम्पल होंडा, ठीक है, होंडा लिख दिया, ठीक है। इक्वल्स टू लगाया क्योंकि किसी भी फंक्शनल फॉर्मूला को यूज करने के लिए इक्वल्स टू लगाया जाता है। इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट द रेंज you have, I have selected the range, comma the range from where you want to find out, the criteria you have written, जो कंडीशन आपने लगाई है वो ये, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया 3। अगर आप फाइंड आउट करोगे तो एक होंडा ये है, एक होंडा ये है और एक होंडा ये है। अभी तो ये आपकी एक छोटी शीट बनी हुई है, छोटा मतलब कम डेटा आपका यहाँ पे एंटर्ड है। whenever you have large amount of data जिसमें 50, 60, 50 अबव जितनी भी आपकी डेटा एंट्रीज हैं या 500 अबव आपकी डेटा एंट्रीज हैं और आपको उसमें कुछ काउंट करना है बस किसी भी तरीके का, किसी भी पर्टिकुलर थिंग के अकॉर्डिंग, तब आप काउंट इफ का फंक्शन यूज कर सकते हो और वहाँ पे आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टाइप, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। तो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया लिख लिया, ठीक है। हमारा क्राइटेरिया कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगाया जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा है। कोई भी फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो उस फॉर्मूला में लगाते ही आपके पास उसका बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स हम बोलते हैं, एक फॉर्मेट आ जाएगा कि आपको फंक्शंस को इस तरीके से लगाना है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टर्म दैट इज कॉन्कैटिनेट। अभी तक हमने कितने पढ़ लिए, 1 2 3 4 5, हमने 5 फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं। अभी 6 फॉर्मूला पे हम आ रहे हैं, दैट इज 6 टर्म पे, दैट इज कॉन्कैटिनेट, ओके। अब इसके लिए हमें एक डेटा बनाना पड़ेगा। डेटा क्या बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम डेटा बनाते हैं फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, नेम्स के अकॉर्डिंग। कॉन्कैटिनेट एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे आपको कुछ दो सेल्स को कंबाइन करना है, ठीक है। जब आपको कोई दो सेल्स को कंबाइन करके एक सेल में लाना है तो आप उसको कॉन्कैटिनेट टर्म यूज कर सकते हो, उसके लिए कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब आप मुझसे बोलोगे कि हम मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को भी तो चूज कर सकते हैं,
लेकिन मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन वो इसलिए यूज होता है जब आप दो सेल्स के डेटा को एक सेल में बनाना चाहते हो। यहाँ हमें दो सेल के डेटा को एक सेल में तो बनाना है, पर दोनों की एंट्रीज हमें लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रैंडमली एक डेटा बनाते हैं फटाफट, लाइक लीना मल्होत्रा, यहाँ पे ले लेते हैं लीना जय राहुल, यहाँ लेते हैं फराह, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ सरनेम्स ले लेते हैं, दैट इज आई एम टेकिंग रैंडम नंबर, रैंडम सरनेम्स एंड नेम्स, ओके। These are the random numbers I am checking. Okay, now we will use the concatenate term, ठीक है। इक्वल्स टू लगाया हमने, हमें इन दोनों सेल्स को कंबाइन करना है, कंकैटिनेट करना है, तो हम इन दोनों के आगे इक्वल्स टू लगाएंगे, ठीक है। अगर हमें इन्हें कंकैटिनेट करना तो हम यहाँ नीचे लगाते। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी फॉर्मूला यूज करना है, अगर आपको ऐसे कॉलम वाइज यूज करना है तो आप डाउनवर्ड्स फॉर्मूला लगाओगे, और अगर आपको रो वाइज फॉर्मूला यूज करना है तो आपको रो वाइज फॉर्मूला यूज करना है तो आपको आप ये ऐसे फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट आप लिखेंगे, कॉन्कैट, देखिए अब माप आ गई पहले से ही, राइट इट स्टार्ट टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2, आपने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा टेक्स्ट 2 जो भी आपने लिखा है, राइट इट क्लोज। अब ये दो से ज्यादा भी आपके यहाँ पे एंट्री हो सकती है, ठीक है, एंटर। आपने देखा यहाँ पर आपके जो फुल नेम आपका अगर शो हो रहा है तो आप देख रहे हो कॉन्कैटिनेट हो गया है, दोनों सेल का नाम एक सेल में आ गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आया या दो दूसरे का नहीं आया, दोनों सेल एक साथ, आपके दोनों सेल की डेटा आपके यहाँ पे एंटर हो गई। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर लूंगी तो हर एक आपकी रो में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन तो मैंने आपको बताया है, जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज करते हो तो वो जो भी चीज़ उस सेल पे लिखी होती है वो सब जगह अप्लाई हो जाती है। अब आप इसमें कंडीशन देखिए कि यहाँ जो ये लीना मल्होत्रा लिखा है, आई नीड अ स्पेस बिटवीन दीज टू नेम्स, है ना, एक सिंगल नाम लग रहा है, तो मैं इसके बीच में ना थोड़ा सा स्पेस चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, मैं उसके लिए यूज करूँगी इक्वल्स टू concatenate bracket start select the range comma, उसके बाद मुझे स्पेस देना है। अगर मुझे कोई भी टर्म या कोई भी ऑपरेटर अलग से देना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने स्पेस दबाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगा के दूसरी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और पैरेंथेसिस लगा दिया, एंटर। अब आप देख रहे हो लीना मल्होत्रा के बीच में एक सिंगल स्पेस आ गया। इसकी जगह मैं ये भी कर सकती हूँ, अगर मैं ज़्यादा स्पेस दूंगी यहाँ पर तो मैं और ज़्यादा स्पेस दे सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं हमने कितना स्पेस दिया है, 1 2 3 4, आप देख रहे हो 4 का बैक स्पेस दिया है। आई डू ओके, ठीक है, एंटर। आप देखो कितना स्पेस आ गया बीच में, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है। आप देख रहे हो मैं यहाँ से स्पेस कम कर दूंगी, सिंगल स्पेस रखूंगी तो सिंगल स्पेस आ जाएगा, देखिए सिंगल स्पेस। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज करूंगी, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन इस सब जगह अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक फंक्शन है कॉन्कैटिनेट वाला, ठीक है। कॉन्कैटिनेट फंक्शन इसलिए यूज होता है जब आप दो सेल्स के डेटा को एक सेल में कंबाइन करना चाहते हो, उस डेटा को लिखना चाहते हो।
तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो और इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला, ठीक है। और ये दो तरीके से है, या तो आपको दोनों, अगर आप दोनों सेल्स को यूज करते हो तो आपका जो यहाँ पे डेटा लिखा है वो आपका एक साथ हो जाएगा, और अगर अब आप इसके बीच में दो टर्म्स को लगाना चाहते हो तो वो आपका डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। देख रहे हो कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला हुआ है। लीना मल्होत्रा एंड लीना मल्होत्रा दोनों में सिर्फ एक स्पेस की जरूरत है, वो स्पेस कैसे लगाया है वो आप देख सकते हो फॉर्मूला को यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका कॉन्कैटिनेट टाइप हो गया। अब बात करते हैं कुछ और अदर फंक्शंस की जो कि हमारे यहाँ इंसर्ट है, जैसे कुछ और चीज़ों की, जैसे कि हमारी हाउ टू इंसर्ट द टेबल्स। टेबल्स वैसे ही पहले से यहाँ टेबल्स होते हैं, अगर आपको इन केस यहाँ टेबल्स इंसर्ट करानी है तो आप वो भी करा सकते हो, ठीक है। पिक्चर्स इंसर्ट कराने के लिए आपको क्या करना होगा, गो टू द इंसर्ट मेन्यू, राइट क्लिक ऑन द पिक्चर्स ऑप्शन। जैसे ही आप पिक्चर्स ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स, और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर्स, फॉर एग्जांपल कैमरा रोल में नहीं है कुछ, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसको रीसाइज, इसका साइज री शॉर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो, इसको कट करा सकते हो। तो पहले तो ये देखते हैं कि हमने अभी तक आज हमने 6 फॉर्मूलाज को लर्न किया। सबसे पहला हमने एवरेज को, बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज मैंने आज आपको बताए हैं। सबसे पहला एवरेज, फिर उसके बाद सम कैसे निकालते हैं, उसके भी सम निकालने के भी 3 तरीके हैं। उसके बाद कार टाइप सम, इफ सम कंडीशन के साथ कैसे निकाला जाता है किसी क्राइटेरिया के साथ। उसके बाद काउंट और काउंट इफ कैसे निकाला जाता है किसी क्राइटेरिया के साथ ही साथ कॉन्कैटिनेट करना किसी भी दो सेल्स को नंबर। तो 6 फॉर्मूलाज हमने करे हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम अदर फॉर्मूलाज, बट उससे पहले हम कुछ मेन्यू पार्ट्स के ऑप्शंस को यहाँ देख लेते हैं जो कि हम इंसर्ट मेन्यू में अभी कर रहे थे। इंसर्ट अ टेबल, ठीक है। फिर पिक्चर्स कैसे इंसर्ट कराई जा सकती है, शेप्स को आप कैसे इंसर्ट करा सकते हो। आपको कहीं कभी कुछ ऐसे शीट पे कुछ ऐसे डायग्राम्स या आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ को प्रेजेंट करना होता है जो आपके किसी शेप्स के थ्रू या विजुअलाइज हो सकते हैं, तो आप उन शेप्स को यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट को चूज़ कर सकते हो, दीज आर द स्मार्ट आर्ट यू कैन यूज़। स्क्रीनशॉट्स भी लेके आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ रिकमेंडेड चार्ट्स को लेकर भी, और चार्ट्स को इंसर्ट कराने के लिए और भी ऑप्शन है, ये रहा आपके पास ऑप्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चार्ट शो करना चाहती हूँ इसका, आप देख रहे हो अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ये चार्ट अपने आप बन गया। सबसे पहले उसने होंडा को ले लिया, उसने देखा होंडा की जो रेंज है वो 1000 से 2000 से कम की है या 1500 से कम की है, तो उसने वर्टिकल बार में उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द नंबर्स रेंज उस हिसाब से दिखा दिया, ठीक है। कि कैसे, ये तो हमने नंबर्स के थ्रू लिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ईयर लिख दूँ और ईयर के साथ मैं उसकी रेंज दिखाऊँ कि कितनी ज़्यादा इनकी कॉस्ट है, कितनी ज़्यादा इनका सोल्ड आउट हुआ है, कितनी ज़्यादा यूज़ हुई है। जैसे हमारा जिस हिसाब से हमारी कोई भी डेटा शीट होती है या कोई भी डेटा एंट्रीज होती है, उस हिसाब से वो उस फॉर्मूले वो चीज़ लगा के यहाँ पर चार्ट्स के थ्रू शो हो जाता है। अब चार्ट्स आपका ये इस पर डिपेंड करता है कि इसने कौन सा एक्सेस दिया है, तो कार टाइप को उसने एक्स एक्सेस ले लिया और नंबर्स को उसने वाई एक्सेस ले लिया। तो ये चार्ट आप किसी भी तरीके का कर सकते हो। देखिए जैसे आपने ये चार्ट लगाया है, इस चार्ट के रिगार्डिंग आपके डिज़ाइंस और फॉर्मेट्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। कि आप कोई चार्ट एलिमेंट यूज़ करना चाहते हो या इस तरीके से आप चार्ट्स को दिखाना चाहते हैं। देखिए मैं सब पे क्लिक कर रही हूँ, तो जितना भी फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है चार्ट्स का स्टाइल वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा।
ठीक है, ये देख रहे हो आप, किसी भी तरीके का मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, सेलेक्ट करते ही इनका डिजाइन, इनका स्टाइल चेंज हो रहा है यहाँ नंबर्स के अकॉर्डिंग। अब इसमें और भी लिस्ट है, आप ये देखिए ब्लैक के थ्रू। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी चार्ट का स्टाइल यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आप देखिए, so these are some of the styles which is inbuilt in the Excel only, और ये आपके डेटा को और अच्छे से एनहांस करेगी। इसको यूज करने से ये होगा कि आप और अच्छे से सामने वाले पर्सन को या डीलर्स को आप अपने व्यूज या आइडियाज को प्रेजेंट कर पा रहे हो, so that they can connect to your data, you can connect to your ideas, that's why आप ये सारी चीज़ों को यूज करते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बाद स्विच रोज एंड कॉलम का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है कि जो आपने रोज बनाई थी या जो आपने कॉलम बनाई थी उसके एक्स एक्सिस यहाँ पे स्विच हो जाए। तो ये आप यूज करोगे तो आपने देखा नंबर्स नीचे आ गए और ये यहाँ चले गए। ठीक है, स्विच रो एंड कॉलम, होंडा, टाटा सिटी सब यहाँ चेंज हो गया। सेलेक्ट डेटा, यहाँ से आप डेटा भी सेलेक्ट कर सकते हो जब आप अपने डेटा का सोर्स लेना चाहते हो। कोई सोर्स आपने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है तो आप उस सोर्स से अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। चेंज चार्ट टाइप, अब अपने चार्ट टाइप को भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइन चार्ट मुझे बनाना है तो मैं लाइन चार्ट को यूज कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे शो नहीं हो रहा लाइन चार्ट क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट नहीं करा। फॉर एग्जांपल दिस, तो आपने देखा लाइन चार्ट का ऑप्शन प्लॉट एरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने चार्ट्स को बताया है कि इतनी ज़्यादा होंडा की इतनी है, टाटा की इतनी है। देखो ये की पॉइंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे की पॉइंट्स दिख गए। मैंने आपको बताया था जो भी लाइन चार्ट है वो लाइन पॉइंट्स टू पॉइंट्स चलता है, पॉइंट्स टू पॉइंट्स को लाइन के थ्रू कनेक्ट करेगा तब वो बताएगा आपका चार्ट। अभी हम वर्टिकल बार्स में कॉलम चार्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, लाइन चार्ट में पॉइंट्स बना दिए गए और जैसे ही आप उस पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे वो आपका चार्ट डिजाइन कर देगा। तो होंडा का आपने देखा 1015 से कम है। टाटा का नंबर क्या लिखा है 3456, तो ये यहाँ पे दिखे हुए हैं। उसके बाद वो 6000 से ऊपर बढ़ गया। ऐसे डाउनफॉल अपफॉल, तो जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनी। ये लाइन आपका ग्राफ शो कर रही है। ठीक है, ये आपका प्लॉट एरिया। तो इसमें भी आपके पास कुछ स्टाइल हैं, आप इस स्टाइल को यूज कर सकते हो, इस स्टाइल को यूज कर सकते हो। इसमें आपके नंबर्स शो हो रहे हैं, देखिए है ना। आपके पहला जो सिंपल आपका था उसमें आपके यहाँ पे रेंज शो हो रही थी, लेकिन इसमें आपके नंबर्स विद इन दिस लाइंस ही शो हो रहे हैं कि क्या उनकी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। तो ये बहुत डिफरेंट तरीके से अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, चलो इसके बाद हम और दूसरा चार्ट टाइप चेंज करके देखते हैं पाई चार्ट में। अब पाई चार्ट के भी तरीके हैं, या तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, भी हम ये यूज करेंगे। ये देखिए पाई चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने सिंपल ले लिया, कुछ नंबर्स दी हो कि यहाँ परसेंटेज नहीं है, दैट्स व्हाई इसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने परसेंटेज दिया। तो सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ये इस नंबर के अकॉर्डिंग है। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज ले लेते तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ शो करता। ठीक है, ये देखिए, तो ये पाई चार्ट हमेशा तब यूज होता है जब आप कोई भी कंपैरिजन आप परसेंटेज फॉर्म में शो करना चाहते हो। चलिए बार चार्ट लेके देखते हैं, पहले ये वाला लेके देखते हैं। ये भी देखिए बार चार्ट के हैं, या बार चार्ट है क्लस्टर फॉर्म में, स्टैक फॉर्म में, 100% स्टैक फॉर्म में, 3D क्लस्टर फॉर्म, 3D स्टैक फॉर्म, या फिर 3D 100% स्टैक बार में दिखाना चाहते हो तो ये हमने यहाँ शो करा। देखा आपने, अभी तक कॉलम चार्ट में आपके वर्टिकल्स बार शो हो रहे थे और ये जो आपने बार चार्ट यूज कराया है इसमें आपके हॉरिजॉन्टल बार शो हो रहे हैं। तो जो डेटा यहाँ लिखा था वो डेटा आपका वहाँ पे दिख रहा है और जो डेटा वहाँ लिखा था वो डेटा आपका यहाँ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि रेंज तो हमारी इस डेटा के अकॉर्डिंग ही है, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब इसमें भी आप डिफरेंट चार्ट्स के स्टाइल्स को चूज कर सकते हो। ये देखिए आप, ठीक है, ये भी एक
एक देखिए बहुत स्टाइलिश वे है रिप्रेजेंट करने का। सो ऑल दीज आर दी डिफरेंट स्टाइल्स टू यूज द चार्ट। अभी चेंज कलर का ऑप्शन अगर आप चूज करोगे तो आप इसकी जगह देखिए ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, जो इसकी रेंज है आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, ये रेंज है, मोनोक्रोमैटिक कर सकते हो, ऑरेंज कर सकते हो, ग्रे कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन कलर्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन चूज करके देखते हैं। तो देखिए ये ऑप्शंस में जितनी भी बार्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन दीज थिंग्स। ठीक है, यहाँ नंबर शो हो गया और यहाँ पे इन्होंने रेंज बता दी, यहाँ पर नाम नहीं है किसी भी पर्टिकुलर चीज का। ठीक है, तो ये थोड़ा चार्ट मुझे थोड़ा सा समझने में थोड़ा लगता है, बट इस चार्ट को भी आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं एरिया चार्ट पर। एरिया चार्ट में आपने देखा प्रॉपर एरिया, लाइन चार्ट में क्या था, डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा था। एरिया चार्ट में उन डॉट्स के साथ उस पर्टिकुलर एरिया को भी सेलेक्ट किया जाता है कि इतना एरिया है। ठीक है, तो हमने इसको यूज करा, ओके करा, और ये देखिए आपका डिफाइंड हो गया एरिया अकॉर्डिंग। इसमें भी आप डिफरेंट स्टाइल्स को चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके साथ इसको अगर आप यूज कर रहे हो तो इसके साथ आपके नंबर्स और उसकी वैल्यूज भी शो हो रही हैं कि ये जो पॉइंट है ये 1000 वाला है, इतना एरिया, ये जो पॉइंट है ये 3000 वाला है, ये 6000 वाला है, 2000 वाला है, ये 8000 वाला है। तो ये पॉइंट्स के साथ साथ उस एरिया को भी सेलेक्ट करना है। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ये ब्लू में हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसका टाइप भी चेंज कर सकती हूँ। चार्ट स्टाइल्स कॉमन रखना चाहती हूँ मैं। इसमें भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं नंबर्स वाला। अगर आप यूज करते हो, नंबर्स आपको दिख रहे हैं, हर एक के पीछे एक डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, अब मूविंग टुवर्ड्स दी सरफेस चार्ट। 3D सरफेस है ये अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें एक सीरीज चाहिए होती है 2 डेटा की, एटलीस्ट 2 सीरीज ऑफ डेटा भी दी। स्टॉक चार्ट भी आपका अप्लाई नहीं होगा, एक्सेल स्कैटर आपका अप्लाई हो जाएगा। चलिए ये ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए एक्सेल स्कैटर सिर्फ डॉट्स के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका डेटा क्या है। ये देखिए, ठीक है, तो ये आपका एक्सेल स्कैटर है। कॉम्बो भी आपका यूज नहीं होगा, रडार भी आपका यूज होता है। रडार एक तरीके से वैसा चार्ट है जो बिल्कुल आपका वेब की तरह, मकड़ी का जाला आपको पता है, जैसे मकड़ी का जाला होता है, जैसे वेब होता है किसी भी उसका, तो उसकी तरह आपको ये शो करेगा। ये थोड़ा सा जो इसका अपीयरेंस होता है जो थोड़ा सा हमारा कंफ्यूजन टाइप का होता है, तो हम इसको चूज करते हैं। आप ये देखिए नंबर्स यहाँ शो हो रहे हैं, ऊपर शो हो रहे हैं, नीचे शो हो रहे हैं, इधर शो हो रहे हैं, उधर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रडार चार्ट है। रडार चार्ट तब आपका यूज होता है जब आपका बहुत अच्छा डेटा हो, जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हो, तब आप उस रडार चार्ट को यूज कर सकते हो। तो हम अभी चार्ट टाइप अपने अकॉर्डिंग लाइन या कॉलम चार्ट, जो बेसिक्स हमारे चार्ट हैं उनको यूज करते हैं, और ये हम चार्ट लिख देते हैं। तो ये चार्ट आपने देखे, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये आपके चार्ट हो गए। तो ये आपके चार्ट हो गए। अब हम so yes, today we have learned the 6 basic formulas of MS Excel, that is average, SUMIF, count, COUNTIF and concatenate. And also side by side we have learned some of the tools of insert menu, that is how to insert the charts, how to insert the pictures, how to insert the table. And we have also learned different types of charts, that how they will appear in our Excel sheet. So today so I will meet you in the next class. In the next class we will come with some different formulas and some different topic of MS Excel only. Thank you.